today's Bible study, I would like Brother Ashwini to open the Hindi Bible and check out two verses. And please check out the word for in Hindi for rejoicing in 1 Peter chapter 1, verse 6. And then we'll compare that with 1 Thessalonians chapter 5, verse 16. In the English Bible, both these words, the verses, the word is rejoicing. 1 Peter 1, 6 and 1 Thessalonians 5:16. Could you please check, brother, in Hindi Bible, what the corresponding Hindi word is for rejoicing? फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर एंड वर्स 6. या और इस कारण तुम मगन होते हो. मगन होते हो. And then check with 1 Thessalonians 5:16. 1 Thessalonians 5:16. सदा आनंदित रहो. Okay, first one is manand, second is anand rako. Okay, magan and anandit. Okay, good. Now, why I wanted to check this out is because in the English Bible, in both places the word rejoicing is used. और इसलिए इसको इसमें देख रहे हैं कि दोनों का शब्द का क्या अलग अलग शब्द है, क्योंकि इंग्लिश में एक ही शब्द प्रयोग किया गया है जो कि है आनंद ही लिखा है उसमें. In 1 Peter 1:6, Peter writes, "In this you greatly rejoice." और पहला अध्याय 6 आयत में लिखा है कि तुम इसमें अति मगन होते हो. And then in 1 Thessalonians 5:16 he says, "Rejoice always." और पहला थिस्सलुनीय 5:16 में लिखा है सदा आनंदित रहो. But actually in the Greek Bible, the original Bible, there are two different words used for rejoicing. पर जो यूनानी भाषा है उसमें इस खुशी के लिए, आनंद के लिए दो अलग-अलग शब्द का प्रयोग हुआ है. The word used in 1 Peter 1:6 is agalaio. और जो पहला अध्याय 6 आयत में जो शब्द यूज किया है, प्रयोग किया गया है, वो है अगालायो शब्द है. AGALLIAO, agalaio in English. It actually means exulting, jumping for joy, exceeding joy. और जो अगालायो शब्द है उसका अगर हिंदी में अनुवाद करें तो कहेगा बहुत आनंदित, इतना आनंद कि आप खुशी से कूदें. Whereas the word in Thessalonians and elsewhere in the Bible, mostly for rejoicing, the word is kairo or chairo, which means cheerfulness. और जो दूसरा शब्द है आनंद का वो है चायरो या कायरो, जिसका मतलब है कि खुशी होना, आनंद होना. In English, the spelling is CHAIRO, chairo. I don't know how to pronounce it, Cairo or Chairo, I don't know. But the word joy is kara. और जो खुशी शब्द है उसके लिए उसको इंग्लिश में तो कायरो लिखा है, पर उसको कारा शब्द की तरह से यूनानी भाषा में बोला गया है. And chara is joy, CHARA is joy. Joy is a noun, corresponding verb is Cairo or Chairo. और जो कारा शब्द है वो है उसका संज्ञा है कि खुशी होना, मगन होना, और उसका जो क्रिया है वो है अति आनंदित होना, यानी बहुत मगन होना. So one word means exultation, other words means cheerfulness. और एक शब्द का मतलब है कि बहुत खुशी से कूदना, बहुत ज्यादा खुश होना, मगन होना, और एक है खुश होना. What's the difference between two? तो इन दोनों में क्या फर्क है? The word exultation is in the context of salvation. जो मगन होना शब्द है वो उद्धार के साथ उसका संदर्भ है. When Peter writes, "In this you greatly rejoice," जब पत्रस से लिखता है कि तुम इस बात में अति मगन होते हो, the context is new birth. तो उसका संदर्भ है पहला, उसका नए जन्म से उसका वो संदर्भ है. In verse 3, Peter writes, "In his great mercy, he has given us new birth into a living hope." क्योंकि 30 आयत में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, जिसने प्रभु यीशु मसीह में के मरे हुए में से जूटने के द्वारा अति बड़ी दया के से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है. Every birth is into something. हर एक जन्म जो है वो कुछ नया लेके आता है. When a baby is born, when we celebrate our birthdays, we say so many years ago, I came into the world. और जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो आदमी को कहते हैं भैया मैं इतने साल पहले दुनिया में आया. So we are born into the world. Physical birth is into the world. और हम इस तरह से शारीरिक रूप से इस संसार में हमारा जन्म होता है. Every birth is into something. हर एक जन्म जो है वो कुछ नया, कुछ चीज में लेके आता है. हम Physical birth is into the present world. और जो शारीरिक जन्म है वो हमारे को इस दुनिया में जो दुनिया में लेके आता है. Spiritual birth is into a living hope.
जो आत्मिक जीवन है, नया जन्म है, वो हमारे को एक एक बड़ी आशा के लिए, जीवित आशा में लेके आता है। New birth into a living hope. नया जन्म नई आशा के लिए, जीवित आशा के लिए लेके आता है। To the resurrection of Jesus Christ from the dead, तो प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने से and into an inheritance can never perish, spoil, or fade. वो ऐसी मिरास में हमें लेके आता है जो कभी नाश नहीं हो सकती, खराब नहीं हो सकती, सड़ नहीं सकती। So at the point of time we accepted Christ as Savior and Lord, we are born again तो जिस क्षण हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हमारा नया जन्म होता है into a living hope, and this hope is resurrection of our bodies and eternal life inheritance in heaven. तो ये हमारे को नई आशा में लेके आता है कि हमारे को अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में और हमारे शरीर का नया जी उठने में। When our focus is on that, we'll not just have normal joy, we'll be exulting in joy. Agalayo. Yeah. जब हमारे को ये इस बात का अनुभव होता है कि हमें एक नया जन्म मिला, अनंत काल का जीवन मिला, तो हमारे अंदर जो आनंद है वो छोटा मोटा आनंद नहीं, वो अगलायो आनंद, यानी उछलते कूदने वाला आनंद होता है। While living in this world, we're not aware of the amazing gift of salvation. इस संसार में रहते हुए हमें इस बात का पता नहीं चलता, ये जो अद्भुत दान है उद्धार का। In 2 Corinthians 9:15, Paul writes about this being an indescribable gift. दूसरा कुरिन्थियों 9:15 में वो लिखता है कि ये ऐसा दान है जिसका जो वर्णन से बाहर है। When you understand this indescribable gift, which you can't explain to people, they experience in the heart, what will happen is we'll have exceeding joy, inexpressible joy. तो जब ये आनंद हमारे को, जो वर्णन से बाहर आनंद हमारे पास होता है, तो लोगों को हम बता नहीं पाते, पर वो आनंद बयान से बाहर आनंद होता है। In fact, in the 8th and 9th verse of 1 Peter chapter 1, पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत में ऐसा लिखा है। Peter writes to people who had not physically seen Jesus or experienced him in life physically. पत्रस उन लोगों के लिए लिख रहा है जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक रूप में दुनिया में नहीं देखा। Even though you have not seen him, you love him. जब हमने उसको देखा भी नहीं, फिर भी वो कहता है तुमने उसे बिना देखे प्रेम रखते हो। Even though you don't see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you receiving at the goal of your faith the salvation of your souls. अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है। In most verses in the Bible, in the New Testament, about rejoicing, the word kairo was used. और इंग्लिश बाइबल में जहाँ पे भी आनंद की बात आती है, वहाँ कायरो शब्द का प्रयोग किया गया है। One more place where the word agalaya is used is when in the book of Acts chapter 16. और एक और जगह जहाँ पे अगालायो आनंद का प्रयोग किया गया है, वो प्रेरितों काम 16वें अध्याय में हम देखते हैं। When the jailer and his whole family believe in Christ. जब वो जो जेलर था और उसके पूरे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया। In fact, he asked Paul, "What should I do to be saved?" वो पत्रस से पूछता है कि मैं उद्धार पाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए क्या करूं? Believe in the Lord to be saved, you and your household. पत्रस कहता है कि तू विश्वास कर और तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। At that time, the family believed and they all baptized. और उन्होंने विश्वास किया और पूरे परिवार ने उद्धार पाके बपतिस्मा पाया। And Acts 16:34 says the jailer was rejoicing because he had come to believe in Jesus. और 34वीं आयत में लिखा है कि उसके जो जेलर था, उसके पूरे घराने समेत परमेश्वर विश्वास करके आनंद किया। And in fact, there the word agalaya is used. और यहाँ पे जो ये आनंद यहाँ पे है, यहाँ पे अगालायो शब्द का प्रयोग किया गया है। It means the context here is salvation. He come to believe in Christ. He knows he's going to heaven. When he knew about salvation, he's exulting for joy, exulting in joy, inexpressible joy, jumping for joy. तो यहाँ पे उसका उद्धार हो गया, और यहाँ पे जब उसका उद्धार होने के बाद जो उसको आनंद की अनुभूति हुई, वो आनंद ऐसा आनंद है जो बयान से बाहर है, जिसके लिए वो कूद रहा, खुशी से, हर्ष से फूले नहीं समा रहा। Whereas in other places, the word is cheerfulness. जहाँ पे बाकी दूसरी जगह जहाँ पे शब्द आनंद के लिए प्रयोग किया है, वो है खुशी या मगन शब्द प्रयोग किया गया है। Which is also a wonderful thing to do. वो भी एक बड़ी अद्भुत बात है। There's no question of a Christian. It's illogical for a Christian to look at circumstances and feel depressed because you look to the Lord and be encouraged. तो एक मसीह के लिए एक बड़े नामुमकिन सी बात है कि वो अपनी परिस्थितियों को देख के निराश हो, क्योंकि हमें हरदम प्रभु की ओर देख के आनंदित रहना है। We have come into the kingdom of God. We are enjoying the kingdom of God now. We are called to enjoy it. हम तो परमेश्वर के राज में आ गए हैं और हमें बुलाया गया है कि हम परमेश्वर के राज में आनंद करें। And kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. और परमेश्वर का राज पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे अंदर आनंद, खुशी और शांति है।
When you live a life in the Spirit, led by the Spirit, you'll preserve the peace and the joy of the Lord. जब हम आत्मा में चलेंगे तो आत्मा को बना के रखेंगे और परमेश्वर की प्रेम और आनंद में हम उसके साथ शांति में उसके साथ चलते रहेंगे. The opposite of joy is feeling sad and depressed and down and out. और खुशी का विपरीत होगा कि हम बड़े निराश हो, उदास हो जाएं और बड़े मन हमारा टूटा हुआ हो. The word of God exalts us to be rejoicing always, all circumstances. और परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि तुम हर परिस्थिति में आनंद करो. Be cheerful in all circumstances. हर परिस्थिति में आनंदित रहो. Rejoicing even in sorrow. दुखों में भी आनंद करते रहो. For example, in 2 Corinthians chapter 6, 8 to 10, Paul writes, दूसरा करंथियों 6 अध्याय 6 से 8वीं आयत में वो मतलब 8 से 10 में लिखता है about the experience he went through in the ministry, जो अनुभव बताता है जो वो सेवकाई में जाता है. through glory and dishonor, वो कहता है कि आदर और निरादर में, bad report and good report, दुर्नाम में और सुनाम में, genuine yet regarded as impostors, यदि भी भरमाने वालों के जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, known yet regarded as unknown, हमें लोग जानने हैं चाहे अनजान में, dying yet we live on, मरते हुए के जैसे हैं और फिर भी जीवित हैं, beaten yet not killed, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण के मारे नहीं है, प्राण से मारे नहीं जाते, sorrowful yet always rejoicing, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, having nothing yet possessing everything. कंगालों के जैसे हैं परंतु बहुतों से धनवान बना देते हैं. What a fantastic combination of attitudes in life. यहाँ पे जीवन के कैसे अद्भुत मेल को हम यहाँ देख रहे हैं. Sorrowful yet always rejoicing. वो दुखों में है फिर भी बड़ा आनंदित है. When you think of salvation, we exult in joy. जब उद्धार की बात सोचते हैं तो हम आनंद से भरपूर हो जाते हैं, कूदते हैं खुशी से. How can we be cheerful in sorrows? और ये बात है कि हम दुखों में कैसे आनंदित हो सकते हैं. We can be cheerful in sorrows when we are comforted by the Holy Spirit. हम दुखों में आनंदित तब हो सकते हैं जब पवित्र आत्मा जी हमारे को दुखों में हमारे को सहानुभूति देता है. In Matthew chapter 5 verse 4, Jesus said, मत्ती 5वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. धन्य वे हैं जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे. Now the word blessed in Greek is a word called makarios, which means happy. और जो शोक शब्द है वो यूनानी भाषा में मकारियो शब्द है, जो मकारियो शब्द है वो. It means happy. मकारियो का मतलब है खुश होना. Now, how can we be happy when you're mourning? और एक बात आती है कि हम शोक करते हुए कैसे आनंदित हो सकते हैं. When you're having difficulties in life, when you're mourning, how can you be happy? जब अपने जीवन में शोक में से गुजर रहे हैं तो हम आनंदित कैसे हो सकते हैं. The same verse explains, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. और उसका उत्तर इसी आयत में है, लिखा है धन्य हैं वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे. When you go through circumstances that make you sorrowful, जब ऐसी परिस्थितियों में से होके जाते हैं जब हमारे को बड़ा निराश कर देती है, in those sorrows, the Holy Spirit, the Comforter, will comfort you. और उस परिस्थितियों में शोक के समय में पवित्र आत्मा जो हमारे को सहानुभूति देने वाला है वो हमें सहानुभूति देता है. And when you're comforted, you're happy, you're joyful. जब हमें सहानुभूति मिलती है तो हम बड़े खुश रहते हैं. Our God is a God of all comfort. हमारा परमेश्वर सब शांति का सहानुभूति देने वाला परमेश्वर है. And 2 Corinthians 1:3 says he comforts us in all our troubles. दूसरा करंथियों 1 अध्याय 3री आयत में कहता है कि वो हमारे को हर परिस्थिति में, हर प्रकार की परिस्थिति में शांति का परमेश्वर है. That's the nature of God. वो परमेश्वर का स्वभाव है. He comforts us in all our troubles. वो हमारे को हर दुखों में हमारे को शांति देने वाला परमेश्वर And sometimes they get discouraged about little things also. कई बार तो हम छोटी-छोटी बातों से ही निराश हो जाते हैं. And there's a psalmist in Psalm 42. और भजन लिखने वाला भजन 42 में लिखता है. His name is Korah. और कोरा का भजन है. And Korah was actually a worship leader. और कोरा जो था वो आराधना की को आगे लेके आराधना शुरू करने वाला व्यक्ति था. His calling is to lead people to worship. उसको इसीलिए बुलाहट थी उसकी कि वो लोगों के अगुवाई करे आराधना में. We worship God because we have joy in Him. और वो इसलिए आराधना कर, हम लोग भी इसलिए आराधना करते हैं क्योंकि हमारे अंदर आनंद है.
We worship God for who He is and who we are in Christ. हम परमेश्वर की आराधना करते हैं कि परमेश्वर क्या है और हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है, उसलिए आराधना करते हैं। And when we realize who He is, और जब इस बात को समझ लेते हैं कि हम वो कौन है, and we rejoice, and therefore that's why we worship God for who He is. और इसलिए हम आनंद करते हैं और आराधना करते हैं क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हमारा प्रभु क्या है। Now, Korah was a worship leader, और कोरा जो था ये आराधना की अगुवाई करने वाला व्यक्ति था। so he should be full of joy, वो तो आनंद से भरा हुआ होता था, supposed to be full of joy, उसको होना चाहिए था कि वो हरदम आनंद से भरपूर रहे, but he was discouraged. और वो भी हम देखते हैं कि वो भी निराश है। Psalm 42 verse 5 he writes, और भजन 42 उसकी 5वीं आयत में वो लिखता है, why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। Put your hope in God, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, for I'll let praise you, my Savior, my God. क्योंकि मैं उसके दर्शन के उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। My soul is downcast within me, therefore I will remember you, O Lord. मेरा प्राण मेरे भीतर भीतर गिरा जाता है, इसलिए प्रभु मैं तुझे स्मरण करूंगा। My soul is downcast within me. Soul means, in New Testament, it means emotions, the intellect, and the will, and the mind. और मेरा प्राण यहाँ पे जो शब्द है वो नए नियम में हम देखेंगे कि वो हमारा सोच विचार, हमारा मन है। Soul is downcast means you are down in your moods, you are emotionally down, mentally down, and you're feeling bad for yourself. और हम यहाँ पे प्राण के निराश होने का मतलब कि हम आत्मिक रीति से और मानसिक रीति से सोच विचार से हम बड़े निराश हैं, टूटे हुए हैं। My soul is downcast with me, therefore I will remember you, O Lord. तो कहता है कि मेरा प्राण जो है भीतर भीतर गिरा जाता है और इसीलिए मैं तुझे स्मरण करूंगा। Now, if you always remember the Lord, He won't be downcast. और अगर हम परमेश्वर का हरदम स्मरण रखेंगे तो हम निराश नहीं होंगे। He realized because he forgot who God is to him, he became downcast. और इस बात को समझता है कोरा कि जब उसने परमेश्वर को पहचानना और उसको स्मरण करना भूल गया, इसलिए उसका मन जो है गिरा जा रहा है। When you remember who God is to you and who you are to God, then you'll never get discouraged because you rise above the situations. जब हम ये पहचान लेते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है और हम अपने परमेश्वर में क्या हैं, तो हम बड़े आनंद करते हैं क्योंकि हम हर परिस्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। You be joyful in God, our Creator. हम अपने उद्धारकर्ता, हमारे को बनाने वाले के अंदर हम बड़े आनंदित रहते हैं। We forget God so easily sometimes. बहुत दफे हम परमेश्वर को बड़े जल्दी से भूल जाते हैं, आसानी I know से। sometimes people get upset because no one talks to them. कई बार तो लोग इस बात से निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि मेरे से कोई बात ही नहीं करता, People neglect me. कि लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, They don't say hello to me मेरे को हेलो ही नहीं कहते and they reject me. और मेरे को तिरस्कार कर देते हैं, They talk against me. मेरे विरोध में बातें करते हैं। And then after we get upset, we go to God. और फिर जब निराश हो जाता है तब परमेश्वर के पास जाते हैं Lord, people not talking to me, Lord. कि प्रभु लोग मेरे से बात ही नहीं कर रहे, People reject me, Lord. लोग मेरे को तिरस्कार कर दे रहे हैं, They talk behind me, Lord. मेरे पीठ पीछे बुराई करते हैं। If you listen to God, you know what God will say? जब परमेश्वर सुनता है हमारी, और फिर परमेश्वर क्या कहता है? I want to talk to you. Do you listen to me? मैं तो तेरे से बात करना चाहता हूँ, क्या तू मेरी बात सुनता है? How many times I want to talk to you, but you're not listening to me. You want other people to talk to you. मैं तो चाहता हूँ तुझसे बात करना, तू मेरी सुनता नहीं और तू चाहता है कि दूसरे लोग तेरे से बात करें। Will I ever reject you? क्या मैं तेरा कभी तिरस्कार करूंगा? I will never reject you. I'll never forsake you. मैं ना कभी छोड़ूंगा, ना तेरा तिरस्कार करूंगा, ना कभी त्यागूंगा। Do I ever talk bad about you? क्या मैंने तेरी कभी बुराई या तेरे लिए बुरा बोला है? God's word always does good to us. परमेश्वर का वचन हर समय हमारे लिए भलाई करता है। We don't listen to God's word. We listen to people and we get upset. हम परमेश्वर की नहीं सुनते, लोगों की सुनते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। And you want to please people. You don't want to please God. और हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की जगह लोगों को प्रसन्न करना शुरू करते हैं। When people praise us, we feel very happy. जब लोग हमारी बड़ाई करते हैं हम बड़े खुश हो जाते हैं। When people curse us, they go into depression. जब लोग हमारे को श्राप देते हैं, बुरा बोलते हैं, हम निराशा में चले जाते हैं। God never curses. परमेश्वर हम पे कभी श्राप नहीं देता। In fact, when people curse us, God change the curse and make it into a blessing. बनिस्बत इसके कि लोग जब हमें श्राप देते हैं, परमेश्वर उस श्राप को भी हमारे लिए आशीष में बदल देता है। When you complain to God that no one talks to me, और जब हम परमेश्वर शिकायत करके प्रभु मेरे से कोई बात ही नहीं करता, and the Lord asks us, do you talk to me? परमेश्वर हमसे उल्टा प्रश्न पूछता है, क्या तुम मुझसे बात करता है? How much of time you spend with me? मेरे साथ तो कितना समय बिताता है? Do you listen to me?
क्या मेरी सुनता है तू? You're so much with people, तू इतने लोगों से की बात सुनता है hardly any time with me. और मेरे साथ तो कोई समय ही नहीं बिताता। When they reject you, और जब वो तेरा तिरस्कार कर देते हैं you come to me तब तू मेरे पास आ जाता है and complain to me. और फिर मेरे से शिकायत करता है। Don't you know I will never reject you, I will never forsake you. क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा? So do we realize that how much God longs for us? क्या हम इस बात को कभी समझते हैं कि परमेश्वर हमसे कितनी लालसा रखता है? We are the inheritance of God. हम परमेश्वर की मिरास हैं। Psalm 94 verse 14 says, भजन 94 उसकी 14वीं आयत में लिखा है, God never reject his people and never forsake his inheritance. यहोवा अपनी प्रजा को ना कभी तजेगा और ना अपने निज भाग को कभी छोड़ेगा। We are the inheritance of God. हम परमेश्वर की प्रजा हैं, उसका भाग हैं। He longs for us. हमारी बड़ी लालसा रखता है हमारे I'm लिए। sure when we go to heaven, the first thing he will tell us, my dear child, now you can't run away anywhere. You can enjoy me all the time. I can enjoy you all the time. और जैसे हम सब स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर से सबसे पहले हमसे यही कहेगा कि अब तू कहीं नहीं भाग सकता, अब तू मेरी संगति का आनंद ले सकता और मैं तेरी संगति का आनंद ले सकता हूँ। Remembering God basically means remembering who he is to us तो परमेश्वर को याद रखने का मतलब है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या है and who we are to him. और हम उसके लिए क्या हैं। Almost every day when I go to God in prayer, when I have fellowship with him, I remember these things. Not everything, some of them I remember. और भाई जब भी प्रार्थना में जाते हैं, सुबह परमेश्वर के साथ मनन समय बिताते हैं, इन बातों को जरूर स्मरण रखते हैं। And I praise him for who he is and who he's made me to be and how he's going on changing me. और कैसे मैं परमेश्वर के लिए क्या हूँ, परमेश्वर मेरे लिए क्या है और कैसे परमेश्वर मुझे रोज अपने समानता में बदलता चला जा रहा है। We worship God for his unchanging nature. हम परमेश्वर की आराधना करते हैं क्योंकि उसका स्वभाव जो कभी बदलने वाला नहीं है। He is gracious, compassionate, slow to anger, abounding in love. वो दयालु, कृपालु और क्रोध करने में विलंब करता है। Psalm 86 verse 15 plus many other verses. भजन 86 और उसकी और भी कई भजनों में ये बात लिखी गई है। He is love personified. 1 John 4:16. और पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि वो प्रेम जो है शारीरिक रूप में हमें दिखाई देता है, वो प्रकट हुआ। He is a God of mercy and forgiveness. Daniel chapter 9 verse 9. और दानियल 9वां अध्याय 9वीं आयत में वो दया करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। He is a just God. 2 Thessalonians chapter 1 verse 6. दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसकी 6ठी आयत में वो न्यायी परमेश्वर है। He is a God of all comfort. 2 Corinthians 1:3. दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 3री आयत वो सारे कृपा का और उस पे शांति देने वाला परमेश्वर है। He is a God of all grace. 1 Peter chapter 5 verse 10. पहला पत्रस 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में वो सारे अनुग्रह का परमेश्वर है। He loves us with an everlasting love. Jeremiah 31:3. और यिर्मयाह 31:3 में वो उसने हमें अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। He is a God who will never leave us, never forsake us. Deuteronomy 31:6. और व्यवस्था विवरण 31:6 में वो ऐसा परमेश्वर ना कभी हमें छोड़ेगा ना कभी हमें त्यागेगा। He is a God who never changes. Malachi 3:6. मलाकी 3:6 के अनुसार वो ऐसा परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। So all these qualities of God, they never change. तो ये सारे गुण जो परमेश्वर के हैं ये कभी बदलने वाले नहीं है। He is a God of all hope. Romans 15:13. रोमियो 15 उसकी 13वीं आयत वो हमारी आशा का परमेश्वर है। So this nature of God never changes. तो ये जो परमेश्वर के गुण हैं ये कभी बदलते नहीं है। In Psalm 30 verse 5 says, his anger lasts for a moment, his compassion for a lifetime. भजन 30वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में वो कहता है कि वो जो है वो उसका जो क्रोध है वो थोड़े समय का और उसकी करुणा सदा की है। When you look at the attributes of God, we feel so thrilled about who he is to us. और जब हम परमेश्वर के इन सारे गुणों को जानते हैं तो हम आनंद से भर जाते हैं। Then look at yourself. फिर हम अपने आप को देखें। How to look at yourself? Looking into the word. हम अपने आप को कैसे देखें? हम तो संसार को देख रहे हैं। No. How do you look at ourselves? We look at ourselves by looking at the word of God. हम अपने आप को कैसे देखें? जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तब हम अपने आप को देखते हैं। For example, in James chapter 1 from verse 22, याकूब पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत में अगर हम देखें, James writes, याकूब ऐसा लिखता है, don't merely listen to the word of God and so deceive yourselves. वचन के चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। Do what it says. जो वचन कहता है उसको करने वाले बनो। If anyone listens to the word of God and doesn't do what it says,
अगर कोई परमेश्वर का वचन सुनता है और उसको जो बताया करने के लिए वो नहीं करता, he's like a man that looks at his face in a mirror and goes away and forgets what he looks like. तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक रूप को दर्पण में देखता है और चला जाता है और भूल जाता है कि वो कैसा है। So as we read the word of God, as we hear the word of God, it's like looking in a mirror. तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो ऐसा है जैसे हम अपने आप को दर्पण में देख रहे हैं, Mirror will tell you who you are. और दर्पण हमें बता देगा कि हम कैसे दिख रहे हैं, क्या है। And I'm sure when you go before a mirror in the morning, you will never move out of the mirror unless you're satisfied with how we look. और जब हम सुबह दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम शीशे के सामने तब तक नहीं हटते जब तक कि हम अपने आप को ठीक ठाक से ना दिखने लगें। Then sit in a motorcycle and go out, और जब मोटरसाइकिल लेके बाहर जाते हैं and you come back home, और वापस आते हैं जब घर, first thing you go and look in the mirror and see how the hair is all disturbed. तो सबसे पहले शीशे के सामने खड़े होकर देखते हैं बाल कैसे बिगड़ गए, जरा इसको देखें। And you won't leave the mirror unless the hair is okay. और अपने बालों को जब तक ठीक करते रहते हैं और शीशे के आगे से हटते नहीं जब तक बाल ठीक ना हो जाएं। So we look in the Bible, it's like looking at yourself. और बाइबल को जो हम देखते हैं तो वो भी ऐसा है जैसे हम अपने आप को देख रहे हैं। And the Bible tells us who we are to God. और बाइबल हमें बताते हैं कि हम परमेश्वर के लिए क्या हैं। Please note on these verses. I mean, I quoted about God's nature. I went a little fast, I think. In case you wanted me to repeat something, I can repeat it during question answer time. Please note down the verse I gave you about who God is. I'm going to give you a verse about who we are. और हमने अभी देखा कि परमेश्वर के गुणों को हमने देखा। भाई थोड़ा तेज चले, अगर आपको ये बातें दोबारा सुननी है या जाननी है तो आप क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे प्रश्न उसमें आप पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम परमेश्वर में क्या है। Believe me, when you remember who we are and who God is, you will not get discouraged. On the other hand, you'll be always cheerful in spite of difficulties. तो अगर हम इस बात को पहचान लेंगे कि हमारा परमेश्वर क्या है और हम परमेश्वर में क्या है, इसको अच्छे से समझ लेंगे तो हम हर समय बड़े आनंद से भरे रहेंगे। So please note down these verses on who we are. तो हम परमेश्वर में क्या हैं, इस बात को आप जरा नोट कर लीजिए पेन पेंसिल से। This for all of us, everyone, every believer in Christ. ये हर विश्वासी के लिए ये है, हम सब के लिए। Number one, we are children of God. सबसे पहली बात, हम परमेश्वर की संतान हैं। John chapter 1 verse 12. यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत। When you believe in the Lord and receive him into heart as Savior and Lord, we have become the children of God. जब परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल जाता है। We don't stop being God's children. और हम परमेश्वर की संतान होने से रुकते नहीं हैं। We always remain God's children. हम हर समय पर हर दम परमेश्वर की संतान बने रहते हैं। When we sin against God, we become disobedient children of God. We don't stop being children of God. जब परमेश्वर के विरोध में काम करते, आज्ञा नहीं मानते, तो हम उसकी संतान होना बंद नहीं कर देते, पर हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारी संतान बन जाते हैं। And God brings us back to him. That's his amazing grace. और ये परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह है कि वो हमारे को फिर से अपने झुंड में लेके आता है। Now, I have a son, Akshay. भाई का एक बेटा है, उसका नाम अक्षय है। When a small boy, when he disobeyed me, I would say, Akshay, you're a disobedient son. जब वो आज्ञा नहीं मानता था, छोटा था, तो भाई उसको बोलते थे, अक्षय तू ना आगे मेरा कहना नहीं मानता। You are a disobedient son now. तू अब अनाज्ञाकारी बेटा बन गया मेरा। Now, I will not say you're a disobedient former son or non-son. You are still my son. भाई ये नहीं कहेंगे तू पहले मेरा बेटा था और अब आज्ञाकारी बेटा नहीं है, तू अभी भी मेरा बेटा है पर अनाज्ञाकारी बेटा है। Similarly, when you disobey God, we become disobedient children, but we still children. इसी तरह से जब परमेश्वर की संतान होते हैं, उसकी आज्ञा नहीं मानते, तो हम उसकी संतान बने रहते हैं पर अनाज्ञाकारी संतान बन जाते हैं। And he is so faithful a God that he'll draw us out of sin and make us enjoy this new life. और हमारा परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है कि हमारे को उस पाप में से निकाल के फिर से अपनी संतान बनाता है, लेके आता है झुंड में। We are children of God, number one. Number two, we are heirs of God and co-heirs with Christ. और दूसरी बात, पहले तो हमने देखा हम परमेश्वर की संतान हैं, फिर हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के साथ वारिस और संगे वारिस हैं। Romans 8:17 says, if you are children, we are heirs of God and co-heirs with Christ. और रोमियो 8:17 में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगे वारिस हैं। We're going to share the glory that Jesus has been given when we meet him in heaven. और प्रभु यीशु मसीह के साथ जब स्वर्ग में जब मिलेंगे तो उसकी जो महिमा है उसके साथ हम भी हम भी वारिस होंगे। We are heirs of God, co-heirs apart from being children. और परमेश्वर की संतान होने के साथ साथ हम प्रभु यीशु मसीह के संगे वारिस भी हैं। Having accepted Christ as Savior and Lord, we are in the hands of God. और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद हम अब परमेश्वर के हाथ में होते हैं। In John 10:27-28, Jesus says,
My sheep listen to my voice. I don't know them. They follow me. They will never perish. No one can snatch them out of my hands. और यूहन्ना 10वां अध्याय 27-28 में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उनको मेरे हाथ से छीन ना लेगा. So we are safely in the hands of Jesus and no one can snatch us out of his hands. The devil can never do it. तो हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में बिल्कुल सुरक्षित हैं. शैतान हमें उसके हाथ से कभी नहीं छीन सकता. We are secure in Christ. हम प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं. Number 3. तीसरी बात. That's the third one. Number 4. अब चौथी बात, हाँ तीसरी हो गई. Our bodies are temples of the Holy Spirit. 1 Corinthians 6:19. पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19वीं आयत में लिखा है, हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर हैं. He lives in us. अंदर वास करता है. He will never leave us. He'll always live in us. वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं. वो हर समय हमारे अंदर वास करता है. Wherever we go, he goes. We carry him in our hearts. जहां भी हम जाते हैं हमारे साथ जाता है. उसको अपने हृदय में हम लेके जाते हैं. Please don't forget your body is the temple of the Holy Spirit. Please take care of your body. इसलिए कभी भी ना भूलो कि क्योंकि पवित्र आत्मा जी का मंदिर हमारा हृदय है, इसलिए हमें अपने शरीर को बड़ा संभाल के रखना है. That's why we have to take care of our health. इसलिए हमें अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है. Outward beauty is not so important. The health of the body is important. इसलिए बाहर की सुंदरता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है. हमारे शरीर को जो अंदर से मजबूत और स्वस्थ होना चाहिए. So never forget your body is the temple of the Holy Spirit. He lives in you. You have to honor God with, you have to honor God with the bodies. इसलिए कभी ना भूलें कि पवित्र आत्मा का मंदिर हमारा शरीर है और इसलिए हमें अपने शरीर का बड़ा आदर करना है. Number 5, in the hands of God there are crown of splendor, a royal diadem in the hand of God. और पांचवी बात कि हम परमेश्वर के हाथ में, हम उसके हाथ में उस मुकुट हैं और राजदंड की तरह हैं. Isaiah chapter 62 verse 3 says, there will be a crown of splendor in God's hand, a royal diadem in the hand of God. और यशायाह 62वां अध्याय उसकी तीसरी आयत में लिखा है कि तुम यहोवा के हाथ में शोभायमान मुकुट और उसके हथेली के राज मुकुट के ठहरोगे. Can you imagine they are in the hands of Jesus? क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस बात के कि हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हैं? No one can snatch us out of his hands. और उसके हाथ से हमें कोई नहीं छीन सकता. In his hands there are crown of splendor. और उसके हाथ में हम एक राज मुकुट की तरह हैं. Number 6, शोभायमान मुकुट की तरह हैं. और छठी बात, we are the delight of God. हम परमेश्वर के आनंद हैं. He sings over us. Zephaniah 3:17. तीसरा अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि वो हमारे पे He हमारे sings गीत over गाता है. us. हमारे ऊपर वो गीत गाता We है. are his delight. हम उसका आनंद का कारण है. Because we belong to him. क्योंकि हम उसके हैं. And because we belong to him, he paid a very great price to purchase us. और हमें अपना बनाने के लिए उसने एक बड़ी कीमत चुकाई हमें खरीदने के लिए. We are so valuable to him. He loves us so much. हम उसके लिए बड़े कीमती हैं. हम उसे हमारे को बहुत कीमत रखता है हमारे लिए वो. So he sings over us. इसलिए वो हमारे मगन होके हमारे कारण गाना गाता है, गीत गाता है. We are the delight of God for who we are. May not be delight because of what we do or what we say. तो हम चाहे जो करते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उससे शायद परमेश्वर को के लिए आनंद का मगन होने का कारण ना हो, पर हम जो हैं परमेश्वर में उसके कारण से परमेश्वर हम पे मगन होता है. When we know how much of delight we are to God, we want to delight him in return, so we live a holy life. तो जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे में कितना आनंद करता है, और इसलिए हम उसके बदले में हम भी परमेश्वर को प्रेम करते हैं और वो उसमें हम भी आनंदित होते हैं. Number 7, सातवीं बात, we are the apple of God's eye. Zechariah chapter 2 verse 8. जकरिया 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत, हम उसके आंख के तारे हैं. We are the apple of God's eye. आंखों की पुतली के समान है. And he values us so much because of who we are. और वो हमारी बड़ी कीमत रखता है क्योंकि हम उसके लिए जो हैं उस कारण से. We are special to him. हम उसके लिए बहुत खास हैं. In Isaiah 43 verse 4, God says to his people, यशायाह 43 उसकी 43 verse 4 चौथी आयत में परमेश्वर कहते हैं, the Lord tells you are precious and honored in my sight. You're precious and honored in my sight. परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है. And I love you. और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं. Number 8, 8वीं बात, we are the purchase of God. हम परमेश्वर के मोल लिए हुए चीज हैं. We've been bought by his blood.
उसने अपने लहू से हमें मोल लिया है। We read in the book of Revelation in chapter 5, verse 9 and 10, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 9वीं और 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, where the four living creatures and the 24 elders worship Jesus, worship the Lamb of God. और जहाँ सारे प्राचीन, चारों प्राचीन और सारे जो 24 प्राचीन और चारों प्राणी परमेश्वर की आराधना करते हैं, And they sing a song to the Lord, worship the Lord there. और परमेश्वर के सामने उसके लिए गीत गाते हैं, आराधना करते हैं। You are worthy to take the scroll and open the seals. और वो कहते हैं कि तू उसकी मोहरें खोलने, पुस्तक को अपने हाथ में लेने और उसकी मोहर खोलने की योग्य है। For you were slain, and by your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. क्योंकि तूने वध हो करके अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए And you made them to मोल be लिया a है। kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth. और उन्हें अपने परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। Just imagine what a great price he purchased us, he paid to purchase us. इसकी कल्पना कीजिए कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है हमें मोल लेने के लिए। So we belong to him. हम उसके हैं। Number 9. Number 9 9वीं बात, is the fact that we are the priests of God Most High. हम एक बड़ी सच्ची बात है कि हम परमेश्वर, जो महान परमेश्वर है, उसके याजक हैं। In the same passage, when they worship Jesus, they say you made them to be a kingdom and priests. और इसी भाग में जो हमने प्रकाशित में पढ़ा, उसमें लिखा है कि उसने राज्य और याजक बनाया हमें। In fact, 1 Peter chapter 2, 9 and 10, Peter writes about believers, the royal priesthood, a holy nation. पहला पत्रस 2 अध्याय 9वीं 10वीं आयत में लिखा है कि उसने हमारे को अपनी निज प्रजा और याजकों का राजपद, याजकों का समाज और पवित्र लोगों का निज प्रजा बनाया है। A royal priesthood. एक हमें पदाधिकारी याजक बनाया है। How many have finished, brother? 8 or 9? 9 brother, 9। Okay. Number 10. 10वां, Number 10 is that we are all called to be ambassadors of Christ. और 10वीं बात, हम सबको परमेश्वर ने अपना राजदूत बनाया है। 2 Corinthians chapter 5 verse 20. 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। Number 11. 11वीं बात, The fact is we are called to be his friends. और 11वीं बात, उन्हें उसने बुलाया कि हम उसके मित्र बने। Now this, we may not respond to him. We are called to be his friends, but some Christians can become enemies of God also. और हमें तो परमेश्वर ने बुलाया अपने मित्र होने के लिए, और कई मसीह लोग परमेश्वर के वैरी बन जाते हैं। Now if you look at John chapter 15 verse 15, अगर हम यूहन्ना 15वां अध्याय उसकी 15वीं आयत को पढ़ें, the Lord says to the apostles, परमेश्वर अपने प्रेरितों को बोलता है, I don't call you servants anymore, I call you friends. मैं अब तुम्हें जो है अपना दास नहीं कहूंगा, पर तुम्हें अपना मित्र कहूंगा। For everything I've learned from the Father, I've made known to you. क्योंकि जो कुछ मैंने पिता से सीखा था, सुना था, वो सब तुम्हें बता दिया है। So we are called to be his friends, but sometimes Christian, by loving the world, they can choose to become enemies of the Lord. तो परमेश्वर ने हमारे को बुलाया है कि हम उसके मित्र बने, और मसीह लोग कई बार खुद चुन लेते हैं कि वो संसार से प्रेम करके परमेश्वर के वैरी बन जाते हैं। So when we look at all these things, we feel so good about ourselves, and we will rejoice in who we are in Christ. तो जब हम इन सारी बातों को स्मरण करते हैं, तो हम बड़ा अच्छा अनुभव करते हैं और परमेश्वर में बड़े आनंदित रहते हैं कि हम प्रभु में क्या हैं। When I spend time with God in prayer, all these 11, there are actually many more points. I don't remember all of them. Few of them, when I remember, they give me so much of joy that I rise above my situation. तो भाई जब भी सुबह प्रार्थना में बैठते हैं, तो इन सारी बातों को स्मरण करते हैं। 12 से भी और भी ज्यादा है, पर सारी चीज स्मरण नाम ही है उस समय, पर उन बातों जितनी याद आती है, उन्हीं को स्मरण करके अपनी परिस्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। There are actually 25 out of 25, 14 don't change, 11 change. और वास्तव में तो 25 हैं, जिसमें से 11 तो बदल दी जाती, 14 चेंज। 14 do not change, 11 might change. अच्छा, 14 ऐसी हैं जो बदल जाती हैं, 11 ऐसे हैं जो नहीं बदलते। That depends upon whether we follow him or not. For example, I told you about friends. We may not be his friends. He is our friend. We may not be his friends. So we must choose to be his friends. तो ऐसी, जैसे हमने अभी उदाहरण के लिए देखा, जैसे कि मित्र की बात, हम परमेश्वर ने तो हमें मित्र बनाया है, हम हो सकता है ना चुने उसका मित्र बनना। But there are some aspects of identity which never change at all, like children of God. और कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं बदलती, जैसे हम परमेश्वर की संतान होने की बात करते हैं।
And they are enough for us to be cheerful in spite of difficulties. और ये हमारे लिए काफी है कि इन बातों को स्मरण करके हम अपनी हर परेशानी में भी बड़े आनंदित और खुश रह सकते हैं। Romans chapter 12, 11 and 12 say, रोमियो 12वां अध्याय 11वीं और 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, never be lacking in zeal, keep your spiritual fervor serving the Lord. प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, परमेश्वर की सेवा करते रहो। Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। So we are rejoice in the hope of the glory of God. तो हम परमेश्वर में जो हमारी महिमा उसकी आशा है उसमें हम आनंदित रहते हैं। And Christ in you, in us, is the hope of glory. और मसीह हमारे में हमारी महिमा की आशा है। Christ always lives in us. We always have the hope of glory. और मसीह हमारे में हरदम वास करता है और हर समय हमारे में महिमा की आशा बनी रहती है। So we can always rejoice. तो हम हर समय आनंदित हो सकते हैं। Rejoicing in sorrows too. और अपने दुखों में भी आनंदित हो सकते हैं। Because in sorrowful circumstances, the Holy Spirit who lives in us will encourage us. He's an encourager, and as he encourages us, we will be happy in spite of the fact we otherwise may be mourning. तो जब हम परेशानी में से जाते हैं तो पवित्र आत्मा जी जो हमारे अंदर है, जो कि प्रोत्साहन देने वाला है, वो हमारे को प्रोत्साहन देता है और हम कैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में भी वो हमारे को हम आनंद से भर सकते हैं। It's not the will of God that his children are downcast, upset, depressed and discouraged. Rather, his will is that we always enjoy his fellowship. परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि हम उसकी संतान दुखी रहें, उदास रहें और शोकित रहें। उसकी इच्छा यही रहती है कि हम हर समय आनंद और उन्माद से भरे रहें। When we constantly have fellowship with the God of encouragement, we'll be constantly encouraged. जब हम प्रोत्साहन देने वाले परमेश्वर के साथ हरदम संगति में रहेंगे तो हम हर समय आनंदित और प्रोत्साहित रहेंगे। May God bless us as we take this Christian life very, very seriously. It's a joyful life, amazing life. 40 years I have lived this life, and I'm going to live many more years too. And with even more zeal, I presume, because God's never give up on us. और परमेश्वर सहायता करे कि परमेश्वर के जो वचन को हम गंभीरता से लें। भाई परमेश्वर के साथ 40 साल से चलते आ रहे हैं और अभी परमेश्वर उनको और अभी उम्र देगा हमारे साथ, हमारे बीच में उसकी सेवा करने के लिए और उसमें आनंदित रहने के लिए। God bless you all. परमेश्वर हम सबको